there was one point we did Dalton's law of partial pressure, right? Yes, and we discussed that for non-reacting gases, right? And I forgot to tell you the combinations. Like this law is not valid for, this is not valid for the mixture, the gases which react with each other. So it is not valid for them. So such gases are carbon monoxide and nitric oxide and oxygen, not valid for this mixture because they react. Okay, and valid for we have like hydrogen, helium, then we have carbon monoxide, and we have helium and nitrogen, such gases. So for these mixtures, this law is valid. You can also write, although you don't require it, but okay, if you want to write NO plus O2, then we have CO plus Cl2, then we have HCl plus NH3. So not valid for these combinations, okay? Not valid for these combinations. What else? चलो अब मैं आपको कोई combination देता हूँ, आप मुझे बताओगे. H2 plus Cl2? No, because they react. Not valid. Yes, and carbon monoxide plus oxygen? No, Not no, valid. not valid. So ठीक है, but इनके लिए valid है. All right. So this was left. जो single molecule, the gaseous mixture जिसमें gases हो जो आपस में react ना करें, ठीक है? ठीक है, non-reactive gases. All right. And one more thing, we know that mostly the gases are collected over water. जैसे आप नॉर्मल प्रोसेसेस में भी देख सकते हैं, जब हम पेट्रोल बनाते हैं तो हम कैसे, तो हमें पता है ना कि पेट्रोलियम से पहले हमें नेचुरल गैस मिलती है. नेचुरल गैस इज पम्प्ड आउट फर्स्ट एंड देन वी हैव द क्रूड, वी हैव द पेट्रोलियम. सिमिलरली द गैसेस आर कलेक्टेड ओवर वाटर. तो सी, जब मैं बात करता हूँ प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस, दैट इज द टोटल प्रेशर, ठीक है, माइनस the pressure due to those due to that water, due to that moisture, and that is called aqueous tension. That is called aqueous tension. So if aqueous tension is given in the question, that means you need to subtract that from the pressure of the gas, and that is the final pressure. Okay, please remember this point. This is the pressure exerted by the moisture. वो extra pressure है ना गैस, ठीक है, तो वो आपको subtract करना है. Is it clear? Yes. आगे करो, इसको मैटर का ही है ना, बस ठीक है फिर तो चलिए थोड़ा सा आगे चले क्योंकि टेस्ट का सिलेबस तो थोड़ा बड़ा. काइनेटिक गैस इक्वेशन, हाँ, masses मतलब कि the volume of a gas molecule I am considering negligible. ठीक है, that is why I have written point masses with respect to the total volume of the gas. With respect to the total volume of the gas. ठीक है, चल. We did the Maxwell distribution of velocities, right? Okay. Now, all right. The next point is ideal and real gases. Ideal and real gases. Now see, we discussed the Boyle's law, we discussed Charles' law, all the gases laws. If I say that the ideal gases are the ones that follows, ideal gas is the one that follows all these laws at all, at every temperature and pressure. It's what is an ideal gas? Ideal gas that follows
that follows the gases laws under all conditions of temperature and pressure. Then what is a real gas? We know that ideal situation नहीं होती है. Then all the gases are real gases that we have. So what is gas then? Real gas. Real gas is the one that follows these gases laws, but not under all conditions, but under two conditions, and that is low pressure and high temperature. High temperature. So that follows the gases laws fairly at low pressure and high temperature. Okay, and high temperature. Now, written. Now I am writing two assumptions from the KTG, kinetic theory of the gases. तो kinetic theory of the gas आपको पता है तो ideal gas के लिए था defined. तो उसमें हम दो assumptions पढ़ रहे थे. Two assumptions. देखो, number A. The forces of attractions and repulsions. The forces of attractions and repulsions among the gas molecules are negligible. ये तुम किया था कि कोई forces of attraction नहीं, are negligible. And one more, the one you have asked, the volume of a molecule of a gas molecule is considered negligible with respect to the total volume of the gas. Total volume of the gas. But these two assumptions, they fail for the real gases. For real gases. now मैं लिख रहा हूं, fail for real gases at high pressure and low temperature. अगर हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, and I am saying that the intermolecular forces are coming into picture. The gas molecules are coming closer, so they will exert the forces of attractions on one another, on each other. Then we have at low temperature hoga, so the kinetic energy is a function of temperature. So at low temperatures, the energy will be lesser, and if the energy will be lesser, obviously they will be tired and they will be again come closer to each other. So हाँ, तो वो तो फ्लो करता है, ऐसा होता है, लेकिन अगर तो इस कंडीशन पर नहीं है ना, हाई प्रेशर एंड, है ना, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस जैसा नहीं है किसके, है उसके ऑपोजिट, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, अगेन मैं बोल सकता हूँ मॉलिक्यूल्स पास आएगी, राइट. एंड ऑल्सो एंड वन मोर थिंग कि हम वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल को नेग्लिजिबल कंसीडर कर नहीं सकते. क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको पॉइंट मासेस ही नहीं मानते, उनका अपना कुछ एक वॉल्यूम होता है, अभी मैं डिस्कस भी करूंगा. करो तो these assumptions they fail for real gases at high pressure and low temperature. हाँ, उनकी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होती है, मैं उनको ऐसे नहीं मान सकता कि उनकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल है. अभी हम देखेंगे. जस्ट नेक्स्ट चले. अभी मैंने बात करा एक चीज की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपकी
अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, राइट? अच्छा, व्हेन आई से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो उसमें कौन कौन सी फोर्सेस आई एम एक्सक्लूडिंग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attractions, they are not included in this intermolecular forces. And a bond, like for say covalent bond, I'm not considering a bond also, that there is a bond between the gas molecules, no, between the two gas molecules, no. When I say intermolecular forces, basically I am talking about the van der Waals forces of van der Waals forces of van der Waals forces of van der Waals forces are never repulsive. They are always attractive in nature. Van der Waals forces of attractions. All these forces are attractive in nature. They are never repulsive. Clear? They are never repulsive. Van der Waals forces are always attractive in nature. चलिए, तो अब देखते कौन कौन से फोर्सेस गैस मॉलिक्यूल्स में, मतलब कौन कौन सी फोर्सेस होती है नेचर में। वॉन डर वॉल फोर्सेस देखें, नंबर वन, तो जब मैं वॉन डर वॉल फोर्सेस की बात करता हूं, नंबर वन इज लंडन फोर्सेस, लंडन, और यू कैन ऑल्सो कॉल देम डिस्पर्जन फोर्सेस, dispersion forces. Just a second, what is the name? Dash London. Fritz London. By they were first identified by Fritz London. देखो क्या होता है, I have two atoms. देखो इस तरीके से, atom A, its nucleus, atom B, या फिर चलो न्यूक्लियस अभी नहीं डालते, atom A and atom B, ठीक है। What I am saying कि suppose at one instant, that may be for a very short period of time, the electron density here is somehow distorted. किसी इंस्टेंट पर क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज, तो उसमें क्या है, डिस्टॉर्टेड का मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, किसी एक एंड पे ज्यादा आ गए तो उस एंड पर कम हो गया चार्ज। तो सपोज यहां पर मेरा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया फॉर अ टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एट एनी इंस्टेंट, so I'm saying this end is partial negative, and in comparison to this one is partial positive. Yes. Now what happens due to, first of all, this is instantaneous dipole. This is instantaneous dipole. Instantaneous dipole. Instantaneous dipole. अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा, आई हैव अनदर एटम, तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब क्या करेगी, तो अगर मैं यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज कर देता हूं तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी डिस्टॉर्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो, टेल मी। और अब क्या होगा, इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने इसके अंदर भी क्या इंड्यूस कर दिया, एक डाइपोल, नहीं कर दिया, तो दिस इज योर इंड्यूस्ड डाइपोल, दिस इज योर इंड्यूस्ड डाइपोल। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कैन आई कॉल इट इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लंडन फोर्सेस, कि एक मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आई एम नॉट कंसीडरिंग इट इज स्फेरिकली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, आई एम कंसीडरिंग कि वो समहाउ डिस्टॉर्ट हो गया किसी इंस्टेंट पे, जैसे वो डिस्टॉर्ट हुआ उसकी वजह से दूसरे वाले में भी एक पोलैरिटी जनरेट हो गई विच इज अ डाइपोल, ठीक है, इसी चीज को मैं बोल रहा हूं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड दीज आर लंडन फोर्सेस। सो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है, लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा एक बात बताओ, इन मॉलिक्यूल्स को इन एटम्स को इफ आई take them far away from each other, so obviously the magnitude of these forces will decrease because they are distance dependent, ठीक है। तो
तो कैसे वो वैरी करते हैं, तो आप याद रखना जो आपकी इंटरैक्शन एनर्जी है, इंटरैक्शन एनर्जी, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 6 एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, बिकॉज डिस्टेंस डिपेंडेंट है, दूर जाएंगे तो मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा फोर्सेस, तो कब तक r की पावर 6 था, क्योंकि ये रिलेशन आ सकता है हाउ दिस लंडन फोर्स विद द, चार ऑप्शन आ सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 2, r की पावर 3, r की पावर 6, r की पावर 4। ठीक है, इज इट क्लियर? टेल मी। अच्छा, ऐसा मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स व्हिच डू नॉट हैव the permanent dipoles. When they do not have the permanent dipoles, but then in one molecule I am considering that at one particular point of time electron density gets distorted, instantaneous dipole हो गया किसी इंस्टेंट पर, उसकी वजह से दूसरे में भी पोलैरिटी इंड्यूस है। तो जैसे मैंने एटम्स में कंसीडर करा है, द सेम थिंग कैन हैपन इन मॉलिक्यूल्स आल्सो। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट इज योर, तो ये हो गए आपके लंदन फोर्सेस। सेकंड इज योर dipole induced dipole, dipole induced। देखो, when you have two polar molecules का मतलब क्या है, उनके अंदर तो permanent dipole ऑलरेडी है, which are having which possess permanent dipoles, they are already permanent dipoles, like for example HCl, so you have HCl, partial negative, partial positive, and we have another HCl, partial positive, partial negative. So the interactions, the forces of attractions between these two polar molecules, they are dipole, dipole, dipole. I'm so sorry. Dipole, dipole. I'm so sorry. Dipole, dipole. Dipole, dipole interactions. Dipole, dipole interactions. Now, अगर if I have a stationary polar molecule, stationary polar molecule, तो उस केस में जो इंटरैक्शन एनर्जी होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3। बट इफ इट इज रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल, दैट इट इज रोटेटिंग, ठीक है, तो ऑब्वियसली द शेप ऑफ द डाइपोल, द व्हाट यू कॉल द डाइपोल मोमेंट की मोमेंट है, उस केस में क्या होगा, इंटरैक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट डाइपोल इंड्यूस, अब आएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग वन पोलर मॉलिक्यूल एंड अनदर एंड वन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो HCl और उसके साथ आप ले सकते हो CH4, यस और नो, CH4 या फिर NH3 and CH4। if I ask you what type of atoms are there in these molecules, ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे डाइपोल इंड्यूस, और चार ऑप्शंस देंगे डाइपोल, डाइपोल, लंदन, डाइपोल इंड्यूस, तो आप बता दोगे। इसमें क्या, मेरे पास एक परमानेंट डाइपोल है और दूसरा तो मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बट इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन आना, पोलैरिटी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी विच इज नॉट हैविंग अ डाइपोल, उसमें भी अगर डाइपोल का इंड्यूस होता है तो दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड। अभी ये मेरे पास फिलहाल क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, alright, now D you are already familiar। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो अ वैन डर वाल्स फोर्सेस, बट या क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर कोई नहीं दिखा सकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय स्पेसिफिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो कब जब H अटैच सीजन के साथ H अटैच हो
at a charge electronegative in 3 के साथ. हाँ, in some cases we consider this also. ठीक है. So then what happens? There is a hydrogen bonding. For example, we say ethanol molecule या फिर alcohol, simple alcohol molecules. So alcohol molecules, we say that they have high boiling point. क्यों? क्योंकि each alcohol molecule is linked to another alcohol molecule via the hydrogen bonds. These are intermolecular because they are between two molecules. So intermolecular hydrogen now इसी से related question है that orthonitrophenol is steam volatile whereas paranitrophenol is not. Orthonitrophenol is steam volatile, मतलब steam मतलब थोड़ी सी steam के साथ ही it just vaporizes, so it's volatile, it just escapes. While paranitrophenol is stable, it does not vaporize or it is not volatile. Now, why? So we have orthonitrophenol. Intramolecular hydrogen Yes. bonding. So we have this is orthonitrophenol. ऐसा बना सकता हूँ? Yes. So we have intramolecular hydrogen bonding. ठीक है? Within the same molecule. ठीक है? This is your intramolecular H bond. Intramolecular H bond. या फिर इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो क्योंकि अभी क्या ऐसे दिखा देते. ठीक है? And we have paranitrophenol. देखो पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है? हाँ, दैट इज द उल्टा कर दिया. ठीक है? यहां पर क्या हो गया? What forces of attractions are this? These are your intermolecular hydrogen bond. And see, intermolecular hydrogen bond is leading to association of molecules. एक molecule दूसरे के साथ associate हो रखा है. Leading to association of molecules, and hence paranitrophenol is stable. Clear? Is more stable, you can write. Clear? And what leads to the stability? This intermolecular hydrogen bonding. ठीक है? Clear? Yes? Yes, it has a lesser boiling point also. Yes, Shireen, absolutely correct. Due to this, the orthonitrophenol has lesser boiling point. हाँ. जो फिनॉल होगा वो अल्कोहल. आप चाहते हो फिनॉल और अल्कोहल में कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन ज्यादा स्टेबल है? मतलब एसिडिक नेचर पूछ रहे हो नॉर्मल? हाँ, तो वोलेटाइल कैसे होगा? मतलब वोलेटाइल थोड़ा ना होगा. अल्कोहल वोलेटाइल होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बट आप वोलेटाइल थोड़ा ना बोलोगे उसको. कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? अगर मैं रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल रखूंगा तो वो वोलेटाइल है, उड़ जाएगा. एसीटोन है,
एसीटोन है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट वाटर के कंपैरिजन में कम है, like around 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का जबकि 100 डिग्री सेल्सियस, बट इट डजंट मीन कि इट्स वोलेटाइल। वन मोर थिंग, हाँ, सो जो बोल रहा था कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्कोहल का, तो आई वाज कंपेयरिंग इट विद द रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तभी तो देखो इथेन इज अ गैस, इथेनॉल इज अ लिक्विड। इसलिए तो मैं जब इथेनॉल को इथेन से कंपेयर कर रहा था, इसलिए मैंने वो बोला। ठीक है, so I was comparing it with the respective hydrocarbons. All right, now see. तो इसका मतलब कि जो रियल गैसेस है, they do not show the ideal behavior at high pressure and low temperature. So that means there would be some sort of deviation from the ideal behavior. Okay. So for example, see, if I draw a graph between PV and P, you know that for an ideal gas, PV is constant, so it won't depend upon the pressure, and the graph will look like this. Yes or no? This is for ideal gas. Ideal gas. Now, but for the real gases, what is the nature of this curve? See, I'm drawing some curves. ठीक है, देखो मैं किसके लिए बना रहा हूँ. This is for hydrogen, this is for helium, this is for CO2, and we have for CH4 and carbon monoxide. ठीक है, तो और अच्छे से बनाता हूँ, थोड़ा नीचे बनाता हूँ. मैं किसी भी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, आई सपोज एट टेम्परेचर टी पर मैं ये सारे प्लॉट्स कर रहा हूं. ठीक है, तो ये होना चाहिए फॉर आइडियल गैस. दिस इज फॉर आइडियल गैस, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर helium, then this is for carbon monoxide, we have CH4. ठीक है, तो देखो ये डिफरेंट कर्व्स क्या दिखा रहे हैं? द डिविएशंस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. डिविएशंस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर कि आइडियल गैस का जो ग्राफ, जब प्लॉट आना चाहिए था, इट शुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन, बट these curves, these distorted curves are showing that these gases undergo deviation from the ideal behavior. Now, gases like hydrogen and helium, can I say they show, because if I consider this as zero, they show positive deviation from the ideal behavior. Whereas gases, these gases, they show negative in some at a low pressure range, then reaching to the minimum, and then it keeps on increasing. So at high pressures, they show positive deviation. So at low pressure, they are showing negative deviation. At high pressure, they are showing पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, देखो तो इसी को क्या कितना डेविएशन हुआ, a real gas is deviating from the ideal behavior. So to what extent it is deviating is basically described by a factor which is called compressibility factor, which is called compressibility factor. See, देखो, so the effect of pressure and temperature on real gas is defined by Z, this compressibility factor, और इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो the extent of deviation
of an ideal of a real gas from the ideal behavior is denoted by ठीक है ये कितना डिविएट हुआ है देखो नाउ z is हाँ pv upon nrt this v is the v observed मतलब volume of the real gas we observed मतलब volume of the real gas now so I can write it pv real divided by nrt now we know that for an ideal gas now ideal gas is also the one which follows the ideal gas equation which is pv is equal to nrt and here this v is obviously v ideal so if I write this pvi here it becomes pv real upon pv ideal this gets cancelled so z is basically v real upon v ideal v real upon v ideal now so z is equal to ध्यान से देखना pv is upon nrt ठीक है now I have three cases z is equal to 1 z less than 1 and z greater than 1 ध्यान से इस चीज को समझ z is equal to 1 का मतलब क्या है कि pv is equal to nrt हो that means a real gas behaves like an ideal gas that means a real gas behaves like an ideal gas and an ideal gas cannot be liquefied an ideal gas cannot be liquefied so I'm writing it here why it cannot be liquefied because हम क्या बात करते हैं high temperature so इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वहां पे हम लिक्विफैक्शन की बात नहीं करते बिकॉज लिक्विफैक्शन अराइज कहां पर होता है एट क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर तक तो लाना पड़ेगा ना पहले गैस को कूल डाउन तो करो टिल दैट टेम्परेचर इज रीच्ड विच इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर लेकिन हम यहाँ तो बात ही नहीं करते बिकॉज हम तो हाई टेम्परेचर ले रखा है हमने तो हाई टेम्परेचर पे तो वो गैस की तरह ही एग्जिस्ट करेगी ठीक है अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस an ideal gas cannot be liquefied क्योंकि जो ये हाई टेम्परेचर है ऑब्वियसली इस टेम्परेचर को मैं क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा ही मान रहा हूं ठीक है नेक्स्ट z is less than 1 तो फर्स्ट ऑफ ऑल a real gas shows negative deviation a real gas shows negative deviation का मतलब क्या है देखो यही समझना नेगेटिव डेविएशंस का मतलब है कि रियल गैस मतलब among the gas molecules are greater than the repulsions क्या बोला मैंने attractions are greater than repulsions ध्यान से समझो attractions greater than repulsions attractions are greater than repulsions इसका मतलब gas is easy to liquefy क्योंकि attraction ज्यादा है ना तो a gas is easy to liquefy easy to liquefy I can also write a gas is easy to compress a gas is easy to compress अगर ये स्टेटमेंट समझ आ गई तो आप मुझे बस ये बताओ ये जो ग्राफ था इसमें कौन सी गैस इन सारों 1 2 3 4 5 में से
सबसे इजीली लिक्विफाई होगी? CO2। CO2, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव डेविएशन उसी में है, राइट? तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब दिस गैस इज द मोस्ट, this will undergo most easy liquefaction and it can be liquefied most easily. ठीक है, अच्छा। Z greater than 1 मतलब a real gas shows positive deviation, positive deviation, positive deviation का मतलब कि repulsions आर ग्रेटर देन अट्रैक्शन। सोचो कि रिपल्शन अट्रैक्शन से ज्यादा हो कब सकते हैं? सोचो, तभी हो सकते हैं अगर गैस मतलब जो साइज है वो बहुत छोटा है, तभी हो सकता है ना, साइज छोटा है। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन छोटी गैसेस है, स्मॉल साइज है, तो वो इजीली कहां लिक्विफाई होती है? इसलिए तो नहीं होती मुझे। तो इसका मतलब गैस इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस as well as difficult to compress or liquefy तो और liquefy, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, दे डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, वो कभी नेगेटिव डेविएशन दिखा, ठीक है, आया? हाँ, एज ऑफ नाउ अभी के लिए ये समझो, टिल द टाइम आई इंट्रोड्यूस यू विद द क्रिटिकल टेम्परेचर, अभी के लिए ये समझो। इस ग्राफ से आप बता सकते हो कि CO2 इज मोस्ट इजीली लिक्विफाइड, ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब देखो, इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ Z versus P, Z versus P, so I'm considering suppose this is Z is equal to 1 है, यहाँ पर अगर Z is equal to 1 है फिर तो आइडियल गैस ही है, यस और नो? ये तो आइडियल गैस ही होगी। अब मैं, हाँ, now what I am doing is Z versus P for a same gas, for a gas at different temperatures, मतलब different temperatures पे मैं उसकी ग्राफ बना रहा हूँ, Z versus P at different temperatures। देखो, suppose this is T1, this is T2, so can I say that T1 is greater than T2 is greater than T3? हाँ, बताओ, can I say T1 is greater than T2 is greater than T3? हाँ, नेगेटिव डेविएशन मत देखो, ये एक गैस के 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर प्लॉट है। अब इसको अभी शायद आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं अब Z वर्सेस, दोनों को कंपेयर करना, अब मैं Z वर्सेस P कर रहा हूं फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर, फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर। तो थोड़ा सा नीचे बना लो, ठीक है, चलो। Z वर्सेस P फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर, तो ये तो आई थिंक हमने अभी किया भी था। This is for ideal gas. Nitrogen, oxygen, carbon monoxide, CH4, CO2, nitrogen, oxygen, carbon monoxide, methane, CO2। तो एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि कैन आई डिवाइड दिस ग्राफ इनटू
3 डिफरेंट रीजन्स, देखो कौन कौन से रीजन, एक ये वाला रीजन, ठीक है, उसके बाद एक ये वाला रीजन, और थोड़ा और आगे कर देता हूँ, ये वाला रीजन यहाँ तक, और एक ये वाला रीजन। यहां क्या बोल रहा हूं मैं, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, यहां पे मैं बोल रहा हूं लो प्रेशर, लो टू मॉडरेट, लो टू मॉडरेट प्रेशर, और यहां पे हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। एक बात बताओ, आप खुद ही बताओगे, अगर मैं बोलूं वेरी लो प्रेशर, तो मुझे बता सकते हो वेरी लो प्रेशर पे क्या सिचुएशन है, जेड की वैल्यूज क्या है, वेरी लो प्रेशर जेड की वैल्यू, हाँ लेस देन 1, जेड की वैल्यू नहीं, वेरी लो प्रेशर लिया है मैंने, बिल्कुल यहाँ पे, मतलब इससे और भी छोटा कर लो इसको, हाँ वेरी लो, मतलब इतना चुप जाओ, यहाँ पे इनिशियली वाली कुछ रेंजेस पे, z equal to 1, देखो, तो वेरी लो प्रेशर पे क्या हो रहा है, जेड इज नियरली इक्वल टू 1, नियरली इक्वल टू 1, मतलब इट बिहेव्स लाइक इन, मतलब हाँ, नियर आइडियल, नियर आइडियल, नियर आइडियल, तो मतलब अच्छा, ये तो हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2, लो टू मॉडरेट, क्या हो रहा है, जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू लेस देन 1, लेस देन 1, इस पूरे रीजन में लेस देन 1, तो इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन, यस और नो, नेगेटिव डेविएशन। और केस नंबर 3, हाई प्रेशर पर क्या हो रहा है, टेल मी, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन, positive deviation, positive deviation. Now I have one more case for the gases like hydrogen and helium. Case number 4. Case number 4. For hydrogen and helium. देखो क्या है, Z is either More than one? 1, कहां पर, लो प्रेशर्स पर, वेरी लो प्रेशर्स पर, apart from this Z is greater than 1 from low to high range, low to high कितना भी कर लो, to high pressure Z is greater than 1, means positive deviations, means positive deviation. Now why it is not showing negative deviation is the reason that that these gases are not easily liquefied, these gases are not easily liquefied. Now Negligible forces of attraction. negligible forces of attractions, just a second, yeah, because of small size, the size is the factor here, because of small size of these gases. इसके बाद आएगा, ठीक है, ठीक है, so we saw that a real gas can only behave, I mean can behave like an ideal gas only at the conditions, what are those conditions of temperature and pressure, low pressure and high, low pressure, high temperature, so that means High apart from temperature, low pressure. apart from this condition, the real gas is different from an ideal gas. And if it is different from an ideal gas, can I say it will have its own equation which it is going to follow? It is not going to follow PV is equal to nRT. The pressure is very low and the temperature is high. Right? So what I'm saying is that real gas has its own pressure volume equation, or it has its own equation to follow except at low pressure and high temperature, where it behaves as near ideal, right? It behaves as near ideal. Now
So for the real gases, we have a different equation. What is that? Van der Waals equation for real gas. Van der Waals equation for real gas. Now see, this is interesting. Suppose I have this container. Earlier, what I was saying, like KTG says, that the molecules of the gas, all the molecules of the gas, they collide with each other, with one another or each other, and also with the walls of the container. So the and pressure is exerted by them on this wall, and we call that pressure to be P ideal. Yes or no? P ideal, because it is due to the ideal gas molecules. Here what happens? And we were not talking about the and yes, one more thing. So the pressure, this pressure is only the pressure only exerted on the walls. Yes or no? But what happens? What happens? And why? Because we considered that there are no intermolecular forces of attractions among the gas molecules. Okay? But in the real gas, there are intermolecular forces of attractions. So what happens? Suppose I am considering one molecule. This is my one molecule. Obviously, it will be surrounded by other molecules. Yes or no? Now, this molecule, this particular molecule, will hit the wall, exert some pressure. Okay. But this molecule will also be pulled back by the other molecules which are present in the surroundings, because there are forces of attraction. So this will attract this will also attract this will also attract it, they will drag it back. Yes or no? They will drag it back. तो मतलब ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी, this also and this also. Dragging it, yes or no? Dragging it back. So देखो, अब हमने दो तरीके का प्रेशर पढ़ना है. One, the pressure exerted on the wall, and the other pressure which is exerted by the surrounding molecule, which is being exerted by the surrounding molecules. तो देखो, ये तो मैंने एक ही मॉलिक्यूल की बात करी है. ऐसे कितने मॉलिक्यूल? सपोज n मॉलिक्यूल्स है. तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो, तो ये वाला तो एक चीज तो हमें समझ आ गई, जो प्रेशर होगा फॉर अ रियल गैस, इट विल बी ग्रेटर देन द पी आइडियल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम एक प्रेशर को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दो तरीके के प्रेशर आ गए. यस, तो एक चीज तो पक्का है कि पी आइडियल इज लेस देन पी रियल. इसका मतलब पी आइडियल में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, जिसे मैं बोलता हूं प्रेशर करेक्शन टर्म. यस, तो देखो, मैंने बोला कि P आइडियल इज लेस देन P रियल. इसका मतलब जो P रियल है वो होगा P आइडियल प्लस सम प्रेशर करेक्शन टर्म. यस और नो? प्रेशर करेक्शन टर्म. अब एक बात बताओ, ये मॉलिक्यूल्स, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स है? n. और मैं क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में कंसीडर कर रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में. तो सपोज n मॉलिक्यूल्स है, सपोज आई हैव n मॉलिक्यूल्स, एंड पर यूनिट वॉल्यूम में मतलब n अपॉन b मॉलिक्यूल्स हो गए टोटल. यस और नो? n अपॉन b. और ये एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल से पीछे अट्रैक्ट हो रहा है, उसको भी मैं n अपॉन b लिख सकता हूं, क्योंकि उसमें भी मैं क्या ले रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम से कितने ड्रैग कर रहे हैं बैक. समझ आया? तो उसको भी मैं कैसे लिख सकता हूं, n अपॉन b. तो क्या मैं लिख सकता हूं, ये जो प्रेशर करेक्शन टर्म है, सपोज मैं इसको पाई से लिख रहा हूं, तो ये प्रेशर करेक्शन टर्म है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अपॉन v. यस, चलो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर. यस, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे और मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर. ठीक है, इसको रखूंगा. तो जब p रियल हो गया, दैट इज p आइडियल प्लस an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर. So the new pressure is this, the ideal pressure plus I have added something to it. Okay, clear? Okay. अब बताऊंगा, एक बता दूं फिर a बताऊंगा. A is a van der Waals constant. ठीक है. ओके, अब बात करते हैं वॉल्यूम की. देखो,
ये तो सिंपल है समझना। अगर मैं कह रहा हूं कि पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास के आसपास तो कितने भी मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, यस और नो? अगर मैं पॉइंट मास कंसीडर कर रहा हूं तो कितने भी मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। तो सपोज अगर मैं बोलूं कि जो वी, सपोज ये मेरे पास वी आइडियल है, तो वी आइडियल में तो कितने भी मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, सराउंड कर सकते हैं। लेकिन if I am saying that for a real gas, the volume of a gas molecule is not negligible. So suppose I'm talking about two molecules. Suppose this is one molecule and this is another molecule. एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, आई एम स्टैंडिंग हियर, सो आई हैव अ सर्टेन वॉल्यूम, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं कि दूसरे लोग मेरे अंदर तो आ नहीं सकते, तो मेरा एक डिफाइंड रीजन है जिसके अंदर कोई नहीं आ सकता। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा कुछ एक्सक्लूडेड रीजन भी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने हैंड मूव कर रहे हैं यहाँ तक, मैं यहाँ पे भी चलूंगा, मैं इधर भी चलूंगा, तो आई हैव अ पर्टिकुलर रीजन सराउंडिंग माई सेल्फ जो कि एक्सक्लूडेड है, उसमें भी कोई नहीं आ सकता। क्योंकि अगर आप यहाँ बैठोगे तो ऑब्वियसली मेरा हाथ आपको लगेगा, इधर बैठोगे तो लगेगा, तो मेरी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की एक एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी मेरे इर्द गिर्द है, ठीक है, जहां पे मैं कह रहा हूं कि कोई और आके नहीं बैठ सकता। इसका मतलब, हाँ, तो इसका मतलब जब जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो अब इसके लिए सपोज, मतलब इन दोनों के लिए एक डिफाइंड रीजन होगा। जैसे सपोज ये वाला रीजन है, मैं बोल रहा हूं इस ये एक्सक्लूडेड रीजन है, इसमें कोई आके नहीं बैठेगा। एक उनका एक एक्सक्लूडेड रीजन है, हर एक मॉलिक्यूल का एक एक्सक्लूडेड रीजन है, राइट? अच्छा, ठीक है। तो जैसे सपोज इसका रेडियस दिस इज आर एंड तो दिस इज ऑल्सो आर, ठीक है। तो इस एक्सक्लूडेड रीजन के लिए कितना हो गया रेडियस, कैपिटल आर कितना हो गया, 2r। वॉल्यूम क्या हो गई, 4/3 पाई आर क्यू विच इज 2r क्यू, यस और नो? तो ये कितना हो गया, 4/3 पाई 8r क्यू। लेकिन ये तो मैंने दो मॉलिक्यूल जब साथ में कंसीडर करे, अगर मुझे यही वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल निकालना हो, पर मॉलिक्यूल, so what I'll say, I'll divide it by 2, so 1/2 into 4/3 pi 8r। कोई प्रॉब्लम? तो अच्छा, अब मैं बोलूं फॉर वन मोल, तो ये तो बन जाएगा 1/2 इंटू 4/3 8r³ इंटू Na हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 को बाहर लिखो और इस 4 को बाहर लिया, Na इसके साथ लिख लिया, और ये हो गया 4/3 पाई r³, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, ये तो वॉल्यूम ही है, तो इसको मैं लिखूंगा 4 इंटू Na इंटू V, 4 इंटू Na इंटू, और यही क्या है, यही है मेरी B इज योर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, B इज योर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। इसका मतलब जो V आइडियल है वो ग्रेटर है V रियल से, क्योंकि V रियल में तो कुछ माइनस कर रहे हैं हम वॉल्यूम में से, जो कि हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कंसीडर कर। सो V रियल अगर V आइडियल से ज्यादा है, तो मैं बोल रहा हूं V आइडियल माइनस समथिंग इज इक्वल टू V रियल, so that minus something is your B, and since I'm considering for n moles, so n, ठीक है। और ये हो गया V रियल। अब देखो, अब जो वॉन डेर वाल इक्वेशन है उसमें क्या होगा, P रियल इंटू V रियल इज इक्वल टू nRT, यस और नो? P रियल क्या है, P आइडियल प्लस an स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V रियल विच इज V आइडियल माइनस NV इज इक्वल टू nRT। दिस इज माय वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ अ वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ van der Waal equation of a gas. Is it clear? Tell me. Yes, sir. Yes. Avni, Bhavika, Gayatri, Ikra, Reshma, Surbhi, Shanmukha, Pujita. Tell me.
Anjana, Yes, sir. and here, yeah, okay. Yes, sir. Mm-hmm. अब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ. P, oh sorry, P plus n a square, sorry, a n square upon v square, v minus nb is equal to n r. ठीक है, देखो, when pressure is low, when pressure is low, तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम तो लार्ज ही होगी. Volume is significantly large. Yes or no? When pressure is low, volume is significantly large. Volume is significantly large. तो इसमें क्या हो सकता है? B can be neglected. B can be neglected. अरे मैं कह रहा हूं कि ये B बहुत बड़ा हो जाएगा तो इस B को तो निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि लो प्रेशर पे तो आइडियल बिहेवियर की तरफ जा रहा है ना वो. ठीक है. अच्छा, when P is low, तो क्या हो सकता है? इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा P plus A. इसको तो मैं निग्लेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि प्रेशर लो है. P n square upon V square into में V is equal to nRT. Any problem? No? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? PV plus an square V upon V square is equal to nRT. V cancels. This is PV is equal to nRT minus an square upon V. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं. इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, एक चीज और इसी में, सॉरी, इसी में क्या करो अब तब समझ आएगा. डिवाइड बोथ साइड्स बाय एनआरटी. ठीक है, एनआरटी. तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीवी अपॉन एनआरटी. यस और नो? इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन एनआरटी 1. और ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर अपॉन एन आर टी वी. यस, एन से एन कैंसिल. तो ये हो गया. और देखो, पीवी अपॉन एनआरटी क्या होता है? जेड. जेड, तो जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए एन अपॉन आर टी वी. यस और नो? तो देखो, इसका मतलब जब प्रेशर लो है तो क्या हो रहा है? नेगेटिव डेविएशन. ये तो हमने पढ़ा ही था. यही तो पढ़ा था हमने कि जब प्रेशर लो होता है तो नेगेटिव डेविएशन होता है. वन में से कुछ माइनस हो रहा है. ठीक है, दैट मींस नेगेटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन आया? यस और नो? अच्छा, बी, व्हेन प्रेशर इज हाई, व्हेन प्रेशर, अब देखो, अब इससे देखेंगे हम कितना हमारा पॉजिटिव डेविएशन आएगा. व्हेन प्रेशर इज हाई तो बी को तो आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते. बी कैन बी निग्लेक्टेड. बट वो वाली टर्म आप निग्लेक्ट कर सकते हो, ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एंड बी निग्लेक्ट क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है. तो देखो, तो ये हो जाएगा पी लिख लेता हूं. V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी. पीवी माइनस पी एन बी इज इक्वल टू एन आर टी. पीवी इज इक्वल टू एन आर टी प्लस पी एन बी. Dividing both sides by nRT. तो क्या हो गया? PV upon nRT is equal to 1 plus PNB upon nRT. N से N cancel. तो ये हो गया Z is equal to 1 plus PB upon RT. तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव डेविएशन. वन में कुछ ऐड हो रहा है. पॉजिटिव डेविएशन. Positive deviation. Positive deviation. Tell me if this is clear. Yes. Tell me if this is clear. Yes, sir. अब आप Yes, sir. चलिए, अब आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो. If Z is a compressibility factor, if Z is a compressibility factor, if Z is a compressibility factor, the van der Waals equation
is the van der Waals equation at low pressure. At low pressure is Z is equal to 1 plus RT by PB. Z is equal to 1 minus A upon BRT. Z is equal to 1 minus PB by RT. And D, Z is equal to 1 plus PB by RT. Tell me. ऑप्शन ए, क्योंकि लो प्रेशर है तो नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन होने के लिए क्या लो प्रेशर, यही तो पढ़ना है, लो प्रेशर लिखा हुआ है। तो लो प्रेशर में क्या होगा, अभी देखो ना, मेरा 1 माइनस एन अपॉन आर टी, अगर 1 मोल के लिए तो ए अपॉन आर टी भी हो गया, ठीक है। एन से कंफ्यूज मत हो जाना, एन तो 1 वैल्यू रख दी 1 मोल के लिए, तो 1 अपॉन ए अपॉन, नो Shireen, it's not A. The van der Waals equation at low pressure. It is at low pressure. Yes, Ankit, tell me. Yes, tell me if this is clear. Anji. Anji, बताइए. Oh, okay. देखो. Next. तो सब कुछ समझ आ गया, और ये कहां से लाया हूं मैं, इस वाले ग्राफ से, ठीक है। और ये वाला तो अलग ही है। एट हाई टेम्परेचर इट विल बिहेव मोर एज एन आइडियल गैस, तो इसलिए मैंने T1 गेटा लिखा है। ये तो दूर जा रहे हैं ना आइडियल बिहेवियर से, तो T3 लो हो गया, लो पे तो ज्यादा डेविएशन दिखा रहा है, हाई पे ही तो वो आइडियल बिहेवियर के पास जाएगा, तो इसलिए ये ऐसा लिखा है, ठीक है। और ये समझ आ गया, मेन इंपॉर्टेंट ये है, डेविएशन समझ आ गए, ऑलराइट। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और बस, जेड में, हाँ यहां पे ही मैं बता देता हूं, देखो। तो अभी मैंने बताया कि कितना एक्सटेंट ऑफ डेविएशन होता है, वो कौन बताता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसी में अगर मैं यहाँ पे ऐसे बता दूं कि प्रेशर और वॉल्यूम में अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, प्रेशर एंड वॉल्यूम, अच्छा एक बार बताओ, प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा ग्राफ आता है, रेक्टेंगुलर हाइपर, अब तो रट गया ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आ गया। तो सपोज दिस इज फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो देखो रियल गैस के लिए कैसे बनेगा, अभी समझाता हूं। दिस इज फॉर रियल गैस। देखो जब प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो अभी बताया था प्रेशर ज्यादा होगा तो डेविएशन ज्यादा हो गए, यस, तो वो डेविएशन यहां दिखा रहा है, ठीक है, ये डेविएशन ज्यादा है। जब प्रेशर कम हो गया, डेविएशन कम, तो डेविएशन कम। और एक चीज और है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि एट लार्ज मोलर वॉल्यूम्स रियल गैस shows is more close to the ideal behavior at large molar volumes. At less molar volumes, there is a more deviation from the ideal character. Yes or no? तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, at large molar volumes, real gas is close to ideal behavior. Yes or no? Is close to ideal behavior. Is it clear? Is it clear? अच्छा, अब अभी तक हमने ये बात करी, अब हम बात करते हैं, जो हम बात करते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ अ गैस। लिक्विफैक्शन ऑफ अ गैस का मतलब कि मुझे उसको लिक्विफाई करना है,
और ये हम स्टडी करेंगे वाया CO2। किसने दिया था? ये किसने दी थी? एंड्रयूज, और इसको हम बोलते हैं एंड्रयूज आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स क्यों? क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम और अरे ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया ये, हाँ ये एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये जो मैंने लिया ये भी तो आइसोथर्म्स ही है, ये आइसोथर्म्स ही तो है, दीज आर आइसोथर्म्स। अच्छा देखिए 50, 31.1 चलो देखो, इसको यहीं पे समझ लेना, V और P के बीच में मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। देखो पहले मैं सारा ड्रॉ कर दूं या एक एक? हाँ ड्रॉ कर देता हूं पहले। इनको थोड़ा स्टीप बनाओ, इन वालों को थोड़ा सा स्टीप। ठीक है, देखो ये है टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस, दिस इज योर 31.1 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 30.98 डिग्री सेल्सियस, this is 21.5 degrees Celsius, and last one is I guess 13.1 degrees Celsius। ध्यान से समझो, इस पॉइंट को ले लो E, और इसके corresponding pressure is your 73 atmosphere, और इसके corresponding volume, इसकी corresponding volume है suppose VM। देखो ये है आपका CO2 के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं, जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो वहां पे क्या आपको लिक्विड स्टेट दिख रही है? ये इधर गैस है, इधर लिक्विड है, ठीक है, दिस इज योर गैस एंड ये है आपका लिक्विड। तो देखो 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट दिस टेम्परेचर, द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट दिस टेम्परेचर, एंड क्योंकि ये हाई टेम्परेचर है तो द रियल गैस इज शोइंग इज क्लोजर टू द आइडियल बिहेवियर। और आपको पता है आइडियल बिहेवियर में तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, तो वैसा सही यहां पे बना हुआ है। तो हाई टेम्परेचर पे CO2 इज एक्टिंग एज आइडियल गैस, ठीक है। टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ 31.1 डिग्री सेल्सियस, इट इज स्टिल नियर टू द आइडियल बिहेवियर, बट ऑब्वियसली देन दिस सम सॉर्ट ऑफ डेविएशन आपको दिखा, बट स्टिल we have carbon dioxide gas only, carbon dioxide liquid, ठीक है। अच्छा I am cooling it further मतलब I am applying the pressure, तो देखो कूलिंग इट फर्दर बोलो, चलो कूलिंग इट फर्दर, या फिर आप ऐसे बोलो कंप्रेस कर रहा हूं इसको, देखो ना वॉल्यूम जा रही है, तो जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं क्या हो रहा है, 30.98 डिग्री सेल्सियस पे मैं उसको कूल डाउन कर रहा हूं, पहले 50 था, 50 पे वो इट इज बिहेविंग एज नियर आइडियल, 31.5 में still it is not undergoing liquefaction, but yes there is some sort of deviation is there, obviously इससे तो ज्यादा ही होगा ना। Then we have 30.98 and for the first time I got liquid CO2, that means this temperature 30.98 degrees Celsius is the maximum temperature at which I can get liquid CO2, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर मुझे मिल ही नहीं रहा, उसके ऊपर तो मुझे प्योर CO2 गैस मिल रही है,
Yes or no? So this is my maximum temperature at which I can obtain carbon dioxide in the liquid form, and this is the first time that the liquid carbon dioxide is being obtained. तो यहां तक मैं क्या कर रहा हूं, गैस को कंप्रेस 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 कंप्रेस, वॉल्यूम कम कर रहा हूं ना, कंप्रेस 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 इस टेम्परेचर पे, कंप्रेस कंप्रेस कंप्रेस। एक पॉइंट ऐसा आया इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे कि मुझे लिक्विड CO2 मिला। इसके बाद तो जो कंप्रेशन होगा फर्दर, वो तो अब गैस का कंप्रेशन नहीं होगा, अब तो लिक्विड का कंप्रेशन होगा। और लिक्विड के कंप्रेशन में मैं बोल रहा हूं ये स्टीप लाइंस हो गई। स्टीप लाइंस का मतलब क्या है कि लिक्विड इतनी इजीली कंप्रेस नहीं होता, क्योंकि वहां पे तो अट्रैक्शन फोर्सेस है। अरे गैस के मुकाबले तो लिक्विड कहां, लिक्विड इजीली कंप्रेस हो ही नहीं सकते। इसीलिए ये स्टीप कर्व का मतलब है कि लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और देखो, क्योंकि स्लाइट कंप्रेशन, जैसे ही आपने यहां पे लिक्विड आया और कंप्रेस करने की कोशिश करी, एकदम से क्या नाम है, प्रेशर बढ़ गया, एकदम से प्रेशर यहां से यहां पहुंच गया, यहां से तुरंत प्रेशर यहां पहुंच गया। तो इससे क्या पता लग रहा है कि कंप्रेशन ऑफ लिक्विड इज नॉट एन इजी टास्क। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, ये टेम्परेचर हो गया, इसके और हम कूल डाउन करते हैं, हम कर रहे हैं 21.5 डिग्री सेल्सियस। क्या हो रहा है, गैस को वॉल्यूम कम कर रहा हूं, कंप्रेस कंप्रेस कम, इस टेम्परेचर पे कंप्रेस 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 टिल पॉइंट दिस। यहां तक मुझे गैस ही कार्बन डाइऑक्साइड की मिली। उसके बाद क्या मिला, इस वाले पूरे रीजन में लिक्विड और गैस कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि कंप्रेशन तो हो रहा है बट प्रेशर पे कोई असर नहीं। ये कुछ ऐसा नहीं है जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर में हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं कि जैसे 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, मुझे वेपर मिलना शुरू हो गया, लेकिन कुछ देर तक थर्मोमीटर की रीडिंग आगे बढ़ती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दैट हीट व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग इज नाउ यूटिलाइज्ड फॉर द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि अब ये इक्विलिब्रियम में आ गए, यहां पे प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा। हाँ, इज द पॉइंट, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम यहां तक पहुंच गई, उसके बाद तो लिक्विड मिल गया। तो यहां तक तो मुझे गैस मिल रहा था, यहां मुझे दोनों एक कोएग्जिस्टेंस ऑफ लिक्विड एंड गैस, और उसके बाद सिर्फ लिक्विड। और अगेन स्टीप लाइन मतलब कंप्रेशन ऑफ लिक्विड इज डिफिकल्ट। यहां पर आ जाओ, और कम टेम्परेचर, कंप्रेस 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 टिल पॉइंट हियर, कोएग्जिस्टेंस कोएग्जिस्टेंस एंड फिर देन लिक्विड। तो इससे क्या समझ आया कि ये जो टेम्परेचर है जब मुझे पहली बार लिक्विड ऑब्टेन हुआ, इसको मैं बोल रहा हूं क्रिटिकल टेम्परेचर। इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे प्रेशर क्या रहा होगा गैस का, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज क्रिटिकल वॉल्यूम। अब मैं तीनों की डेफिनेशन लिख रहा हूं, तीनों की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है हमने, what is TC? The maximum temperature at which the gas can be liquefied. नहीं, the maximum temperature at which, हाँ, the maximum temperature above which the gas cannot be liquefied, right? The gas cannot be liquefied is called critical temperature. मैक्सिमम टेम्परेचर है जिससे ऊपर नहीं हो रही। हाँ, ये तो द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ही लिखो, फिर एट विच, राइट, एट विच द गैस कैन बी लिक्विफाइड, कैन बी लिक्विफाइड। ठीक है, can be liquefied is called critical temperature, TC. What is PC? The pressure of a gas at TC is PC. ठीक है, and what is VC? The volume
of 1 mole of a gas, 1 mole of a gas at Tc is called Vc, is called Vc, and Tc, Vc, Pc, they are critical constants. Tc, Tc, Vc, they are called critical constants. अच्छा, coming back to the van der Waals equation, एक चीज हाँ यही बता दूं, देखो A and B are van der Waals constants. ध्यान से देखना अभी जो मैं बता रहा हूं. Van der Waals constants depends on the nature of gas. Obviously हर गैस के लिए अलग अलग होंगे. Nature of the gas, of a gas, and independent of temperature. Independent of temperature. जल्दी से यूनिट्स देखो. यूनिट्स, एक बात बताओ, an स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्रेशर ही है, तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर इज इक्वल टू an स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. यस, प्रेशर को किस में ले लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल भी बोल सकते हो. वॉल्यूम को लीटर में ले लो, नहीं मीटर क्यूब में लो ना, यहां पे मीटर में लिया है, तो मीटर क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये मोल स्क्वायर. यस और नो, इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ क्या रहा, तो ये होगा न्यूटन माइनस 2 m6 अपॉन मोल 2, कितना हो गया न्यूटन m टू द पावर 4 मोल माइनस 2. ठीक है, ये कितनी यूनिट हो गई. और बी की तो बहुत सिंपल से यही कर लेते हैं, तो ये हो गई ए की. अच्छा, बी तो वॉल्यूम ही है, एन बी तो वॉल्यूम ही है, तो इसको मीटर क्यूब लिख लो, तो मीटर क्यूब अपॉन मोल इज इक्वल टू बी, सो बी इज इक्वल टू मीटर क्यूब पर. सिंपल. और अगर लीटर्स में देनी है तो फिर लीटर, क्योंकि अगर वॉल्यूम को मैं लीटर में लिख रहा हूं, ठीक है, तो लीटर पर मोल. ठीक है, लीटर पर मोल आ गया. और यहां पे भी अगर लीटर में ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, तो फिर इसको पास्कल लिख सकते हैं, तो पास्कल लीटर स्क्वायर अपॉन मोल माइनस 2. कर लोगे ना सारी यूनिट्स, इसमें भी पूछा. और ये पता होना चाहिए, ये एन भी कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम ही तो है, और ये ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्रेशर ही तो है. ठीक है Sir, in this critical pressure, so the Yes. units of N should be mole and for volume it should be meter cube. where yes, so Sir, if I'm in this saying unit. so I'm saying I'm measuring the volume in meter cube, so this becomes meter cube per mole. And if in question you see liter per mole, that is also correct, because because they have considered volume to be in liters. Okay, Sir, in critical pressure. what in this P? Yes, sir. हाँ, so क्या देखो ना, Sir, तो unit volume of को I N have, should be mole. अरे वॉल्यूम को I have written in meter cube. अंकित देखो, ये P है इंटू वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाएगा ना. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ओके, तो वो ए की यूनिट्स मैंने बताई है आपको. इज इट क्लियर? तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस, एंड इन द नेक्स्ट क्लास we have, I'll tell you the expressions for TC, VC, PC, and we will discuss the liquid state, and we will do the questions based on this. So we will try to wrap up this chapter in the next class. Thank you so very much. Do take care.